Himachal Tourism, Billing Paragliding Association, Aero Club of India, FI, She, HP Adventures, Z Punjab Haryana Himachal. इस समय हम समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर हैं और क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 इंडिया के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। इन नज़ारों को देख कहीं ना कहीं ब्रूस मिल्स भी जहां कहीं भी होंगे वे बेहद खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ये वही शख्स है जिन्होंने 1982 में इस लोकेशन की खोज की थी और तब हैंड ग्लाइडर के रूप में ये शुरुआत हुई थी और आज पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है आज की इस प्रतियोगिता में। No retrieve. Okay, so that's very clear because we cannot keep the task at the last day. It is already mentioned. That's done. Now we talk about today's task, and also yesterday's we had some complaints about some people. So if they want to protest, there's a committee you can protest. All right. We talk about the task today. It's the last day of the comp, and we have set up the task like 71.7 kilometers. It's a little different than the normal here. So we take off from D01, and it's anchor cylinder around B38, which is 360 to the east at the top of the ridge, and it's 40 kilometer radius. For the start, which will hit us just here, and then you go B38 1 kilometer radius, it's 360. You get that one, get that cylinder, and then come back to B28, which is the Joginder Nagari, the train station going up. It's on the top with the 1 kilometer. But there will be a lot of people going this way and coming back. So the distance is 4.4 kilometers each side. So that's like almost 9 kilometers distance. So, but always please follow the traffic rules. If you are put the priority to the right people, don't just bump into each other. Okay, so that's the point. From there you're gonna climb, and then we need to go to the next turn point. Is B28, no? Yes. Yeah, no, B28. It's a 4 kilometer radius. You see this antenna in the front ridge?
So that's 4 kilometers distance. It will touch you somewhere in the middle of the valley. So it's up to you. You want to glide straight from the train station, or you want to climb up here and then go and tag it. Your choice. And then after it's B31. B14. Go ahead. Can you look at the map? Yeah. It's a B14. It's a Palampur. And it will hit you somewhere like, you know, where we hit yesterday, the turn point? Just before that Riddle River. On that hump, it will hit you somewhere there. And it says B21 second upper east. So you come from there, you go to this second spur, but the 3 kilometer radius should hit you somewhere in the first spur. And then from here, you will go B47 with 4 kilometer radius, straight north. So you fly past landing, and you see that little forest area, and there is this Sharabalin monastery. So you touch somewhere here. So even you are low, you're safe. There's plenty of landings, and then you can glide back to the goal, 600 kilometers in London. So I wish you all the very best, safe flights. You've been very safe so far, and it's been fun. So keep it safe. And anybody have any questions? Can you set a task time so people can take off early? Thanks. I will just do that. It's 11:30. Left or right? It's a left turn. It's an odd day. So please, thanks for reminding me. It's a left turn again. It's written here. See, left is round, so left turn. And anti-slender. Maybe remind people about tracking. Yeah. Please don't forget your trackers. It's very important, okay? And that's it. You're safe. Everyone will reach you. If you have a tracker, you know, a tracker is to that. And it's locally. Don't jump into the lee side. And always, when you're coming back, because you will have to fly up top to the train station. So don't stretch too low, too close to the electric wires. You need to climb up the top. Don't come low, so you need to climb up, and then maybe you could come here and then check point. If you feel you're happy to take from there, you can do it. You have a choice. That's all I think for the safety side, and that's safety. Right? The only thing, when you're going there, people will be coming, the first gaggle will be coming back. So that time you need to really respect each other and don't make mess, okay? That's all. Thank you very much. And I have to say yesterday's winners. Oh, yeah. We know. So again, yesterday's winner on overall is Austin Cox. Big congratulations, Austin. Winning the championship also. And then in women, as always, Jenny, you did very well. And in Indian category, we have Ranjit. So big congratulations, you've been really well. Welcome, guys. So it's been very nice. So fly safe, enjoy your day.
टास्क बहुत ही मज़ेदार है। पहले टेक ऑफ तो यहीं से हो जाएगा, फिर हमारा पहला जो स्टार्ट सिलेंडर है वो अपना 360 जो पॉइंट है ईस्ट में, उससे 14 किलोमीटर का रेडियस है। तो आप समझिए कि लगभग ये जो यहाँ पे फर्स्ट रिज है वहीं पे अपना सिलेंडर ख़त्म होता है। तो वहाँ पे सब पहले एंटर करेंगे, उसके बाद वही रूट पे आगे जाएंगे 360 तक। तो 360 पॉइंट से 1 किलोमीटर का रेडियस है। उसके बाद सब बाहर जाएंगे, जो अपना पुराना टेक ऑफ था मंगरोली में, वहाँ से एक 4 किलोमीटर का रेडियस है। वहाँ हिट करके फिर सबको वापस जाना है इस तरफ पालमपुर की तरफ। वहाँ पालमपुर से 3 किलोमीटर का रेडियस है। वहाँ से फिर से इनको आना है इस तरफ, और ये जो -1 का अपना रिज है उसके लाइन में कहीं टास्क का हमारा पॉइंट रहेगा। वहाँ हिट करके सीधा फिर बाहर जाना है शराबलिंग मोनेस्ट्री की तरफ। शराबलिंग मोनेस्ट्री का एक पॉइंट है और वहाँ हिट करके सीधा आएंगे गोल को। Right now I'm leading the competition. We've had 4 tasks. I've won 3 out of the 4 and came in second on the other one. Today's our last day of competition. It looks like a beautiful day. Nice clouds, high base. We have a 71-kilometer task set, and I'm very excited to go fly with all my friends. Great. Yeah, it's been a lot of fun so far, and the flying's been really good. We've done most of the tasks we've gone up and down the main ridge here and gone out into the valley a little bit. It's a little bit different because we're going to be going in that direction first, and then come back. We'll have to go out into the valley and then decide when to come back into the terrain. I've been leading for the women, and I think I'm in 11th in the overall, which I'm very happy about too. I'm just going to keep doing what I'm doing to fly consistently and as fast as I can. आज का टास्क बाकी दिन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी हो चुका है आज। तो इसका मतलब है क्लाउड की हाइट ऑलमोस्ट हमारे साथ ही होगी, तो इतना ज़्यादा हाइट हम नहीं ले पाएंगे आज अगर क्लाउड जल्दी होगी। तो इसलिए थोड़ा टास्क डिफ़िकल्ट है आज का। एक्चुअली हर दिन की अपनी डिफ़िकल्टी होती है। जो पहला दिन था वो थोड़ा वीक था कंडीशन में, उसके कंपेरेटिवली आज थोड़ा दिन स्ट्रॉन्ग है, थर्मल्स हैं, हाइट मिल रही है। पर वही है कि ज़्यादा हाइट हम ले नहीं सकते क्योंकि क्लाउड के लेयर बन जाती है ऊपर, तो उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। बाकी फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड दिन थोड़ा अच्छा था, पर कंपेरेटिवली चारों दिन के मुकाबले आज थोड़ा सा हार्ड है टास्क। Today's task is very exciting because it's a ridge run, but also we are going out into the flats. So this will be the tricky moment of the task to decide how high to leave, to go out, to push, to come back with enough height to get a climb again. The weather is extremely favorable. Looks really, really good today. It's one of the reasons people love to race here is it's extremely consistent, and today is no different. Currently, I am second woman, but only by 1 point. So today will be very exciting to see we are really neck and neck for the second podium position. To be honest, it's not good to fly with an idea in mind ahead. You have to be very flexible in this game. You have to always adapt to the conditions as they are. So you just try and do your best, fly with not a lot of emotion, not a lot of ups and downs, but just stay stable and flying fast. जैसे जैसे ये खेल अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही प्रतिभागियों का जोश अपनी चरम सीमा पर बढ़ रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
Himachal Tourism, Billing Paragliding Association, Aero Club of India, FI, She, HP Adventures, Z Punjab Haryana Himachal. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 इंडिया के 5वें व अंतिम टास्क में प्रतिभागियों के सामने 71.7 किलोमीटर का लक्ष्य था, जिसमें 74 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी। आज क्या कुछ खास रहा इस प्रतियोगिता में, आइए देखते हैं। I've been flying like 11 years, now competing again more, and I was number 15 before this day. Now I improved, maybe top 10 something. Billing, it's awesome place, it's awesome. I had some opportunity to free fly before the comp, first time here, and I was visiting the back mountains, and it's to fly better than days before. But one day I was third, but then I was like a 15 something, and I think I will come here, maybe take a group from Finland, some pilots experience this. Like, it's good for beginners, but it's very nice for more experienced pilots, and you can even have, if you are more adventurous, you can go to the back. जो ये कंपटीशन है मेरी देख रेख के अंदर चलता है, तो जो मैं पैरामीटर्स डिसाइड करूँगा, जैसे मैं टास्क रखूँगा, जो भी है तो वो मतलब पूरे मेरे अंडर रहेगा। तो ये चैम्पियनशिप शुरू हो गया मतलब 26 अक्टूबर से, और आज 1 नवंबर है। तो हमने इसमें 5 टास्क किए, तो हर दिन मतलब मौसम को देखते हुए हम अलग अलग टाइप का टास्क करते थे और सेफ्टी को देखते
और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सब के सब कंपटीशन हो गया और सब के सब सेफ है। तो ऐसा आपने शायद पहले भी कभी नहीं सुना होगा। तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी और मुझे हैप्पी लगता है। और ये पहली बार ही नहीं हुआ, ये मेरे साथ 4 बार ही हुआ। मैं 4 बार मीडिएटर था और 4 बार ही मैंने सेफ और सबको फुल मज़ा आया। एक ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसे जो ये बोल सकता कि मज़ा नहीं आया। तो चलिए ये प्री वर्ल्ड कप था। अब अगले साल हम पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के लिए वेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं बाहर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन से और FAI से जो है ऑब्जर्वर, तो उनको भी एक अच्छी वो फीडबैक जाएगी यहाँ से। तो श्योरली मैं देखता हूँ कि इट्स अ बिग फ्यूचर फॉर हियर लाइक आई ऑलवेज से। तो अगले साल देखते हैं क्या मिलता है हमको, वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं। इसमें हमारे देखो बहुत सारी टीम है जो काम करती है, कोऑर्डिनेटर्स है, ये है वो है, जो हम पैराग्लाइडिंग चैम्पियनशिप को चलाते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब ये सब सेटअप हो गया, सबकी रजिस्ट्रेशन होगी, सिलेक्शन हो गई, तो उसके बाद जो हमारा जो कंपटीशन जो प्लेटफॉर्म है उस पे ऊपर हम 4 लोग हमारे जो क्या बोलते हैं टास्क कमेटी में होते हैं और 5वां मैं होता है, वो लोग टास्क बनाते हैं। फिर मैं लास्ट में चेक करता हूँ कि ये टास्क ठीक बना या नहीं बना। अगर उसमें कमी रहेगी तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये चेंज करो या वो चेंज करो। तो फाइनल जब मैं क्लीन करूँगा उसको, जब मैं लूँगा कि ये दिस इज़ गुड, उसके बाद मैं टास्क बोर्ड पे इसको लिखता हूँ, फिर टास्क को एक्सप्लेन करता हूँ और दिन के बारे में उनको फीडबैक देता हूँ कि आज का कैसा है, दिन कैसा रहेगा। वेदर की जानकारी के लिए हमारे पास सुबीर भाई है जो एक्सपर्ट है वेदर के, तो वेदर की जानकारी देते हैं। फिर उस हिसाब से प्लेटफॉर्म तैयार करके लोगों को बोलते हैं कि आज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप इस टाइप से फ्लाइंग करें। तो ये हमारे सेफ्टी के लिए। मैं यहाँ पे 2002 से जब से कंपटीशन यहाँ पे चालू हुआ है तब से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। कंपटीशन टफ था, काफ़ी सालों के बाद हो रहा है, कम से कम 8 साल के बाद हो रहा है कंपटीशन यहाँ पे। लेकिन आज की तारीख में काफ़ी बच्चे तैयार हो गए, यानी इट वॉज टफ। और नॉट ओनली फॉरेन पार्टिसिपेंट भी स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे, तो वेरी हाई क्लास कॉम्प। सब टास्क अलग अलग होते हैं, यानी मोस्टली हम यहाँ पे जा रहे थे पालमपुर तक यहाँ पे, और इस तरफ हम जा रहे थे 360 का पॉइंट है, वहाँ तक हम जा रहे थे। और हर एक टास्क सेपरेट अलग कर रहे थे ताकि डिफ़िकल्टी बढ़ जाए। उसमें आज का टास्क ज़्यादा टेक्निकल था और चैलेंजिंग ज़्यादा था आज का टास्क। हाँ, चैलेंज यानी लॉन्ग ग्लाइड, इक्विपमेंट का फ़र्क पड़ता है। फॉरेन पायलट सब लेटेस्ट इक्विपमेंट से फ्लाई कर रहे हैं जो हारने से, जबकि इंडियन वो मिस कर रहे हैं। बट वी आर गुड, नॉट एग्जैक्टली बट लास्ट डे यस, टुडे आई फिनिश आई थिंक 2nd or 3rd ओवरऑल। वेदर हर एक लक भी काम में करता है इसके अंदर, और इट्स अप एंड डाउन। Keep flying, don't lose patience, keep patience, fly high, don't race too much, go for normal flying, that's it. This is one of the best site in the world, means अगर इसको और भी ढंग से तैयार किया जाए तो वर्ल्ड में टॉप बन सकता है। It's been 5-6 years I'm flying, और ये बीर में कॉम्प आई थिंक 10 साल बाद हो रहा है। इट्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छा रहा, 5 टास्क अच्छे से कंप्लीट हुए हैं। ओवरऑल आई थिंक हम इन द टॉप 50s, और इंडिया में ऐसे कॉम्प होते रहने चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़े आए। द टास्क एवरीथिंग वाज रियली गुड। इवन द फॉरनर्स देयर आर 33 कंट्रीज टोटल में। सो ओवरऑल इट्स बेस्ट एक्सपीरियंस। बीर में काफ़ी टाइम बाद वो हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आई थिंक इंडियन टीम इस कॉम्प को जीती है, सो दैट्स रियली गुड फॉर इंडियंस। और सही है, आप जितना प्रैक्टिस करते हो देन यू गेट टू लर्न, आप एक्सप्लोर करते हो, आप अपने ग्लाइडर्स पे वो करते हो, तो फिर आप लाइक एक स्टेप करके आप बढ़ते रहते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, लाइक काफ़ी साल बाद एक कंपटीशन हुआ है। और इंडियन टीम्स के लिए आई थिंक जितने हम यंगस्टर्स हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आफ्टर इतने सालों बाद हो रहा है तो हमको भी सीखने को मिल रहा है, एंड वी आर ऑल्सो अपग्रेडिंग टू अपने ऊपर वाले ग्लाइडर्स पे। सो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन यहाँ पे इंडिया में। इट्स अ लाइफ टाइम स्पोर्ट, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आप इसको 1 साल में सीख सकते हैं, 2 साल में सीख सकते हैं। आई हैव सीन पीपल हु आर फ्लाइंग इन देयर 80s,
तो वो अभी भी सीख रहे हैं. तो इट्स लाइक आप ज़िंदगी भर सीखते रहते हो एंड यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 इंडिया के 5वें टास्क के रिजल्ट सामने आ गए हैं और आज इन रिजल्ट्स में काफ़ी फेरबदल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस 5वें टास्क में फ्रांस के कार्टिल नॉमी पहले स्थान पर रहे, वही माइकल शायरी जो कि स्विट्जरलैंड के हैं दूसरे स्थान पर रहे और भारत के विजय सोनी तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय वर्ग की अगर बात की जाए तो इसमें विजय सोनी प्रथम स्थान पर, रंजीत सिंह द्वितीय स्थान पर और सुनीत राव तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में फ्रांस की कालोई फेफरनेस पहले स्थान पर, स्विट्जरलैंड की वीर शेरी दूसरे स्थान पर और यूएसए की जेनी ओनियल तीसरे स्थान पर रहे। सपने वही पूरे होते हैं जो खुली आंखों से लिए जाते हैं। नींद में लिए गए सपने सुबह होते ही टूट जाते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपके साथ।